So we had discussed the order of the element and the properties of order of the element in last lecture, right? और हमारे पास एक पूरा लिस्ट आ गया था कि यदि मेरे पास कोई ग्रुप है, उसमें कोई एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर ये है, तो देन आई हैव सम सर्टेन प्रॉपर्टीज of the about the order of the element. That first one is what? Identity is the only element of order 1. Then if you consider any element, then order of A and its inverse, that is A inverse, are same. If you have, or if you know the order of A, then you can always find order of A to the power R for any R belongs to Z. तो ऐसी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, राइट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स की. ओके, नाउ एक लिस्ट हमारे पास एक ग्रुप का भी लिस्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, राइट. सो अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम ये जो ग्रुप का लिस्ट है उस लिस्ट में नए नए ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे और नए नए जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो कॉन्सेप्ट, वो जो लिस्ट है हमारा, उस पर हम टेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 16 to 17 ग्रुप्स का लिस्ट है. उसमें हर एक का ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करो और जो हमने प्रॉपर्टी डिराइव की है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट की, वो उस पर वेरीफाई करो क्या हो रहा है, वो हम देखेंगे और नए नए ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे. तो उसमें हमने एक ग्रुप देखा था सी स्टार का मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. सी स्टार का मतलब मेरा है सी माइनस ज़ीरो. नाउ यू कंसिडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर on this, then this is what? It is a group. In fact, it is abelian group, right? It is abelian group. We had discussed this group, right? C star with multiplication. So let us just recall it. तो उसमें आइडेंटिटी क्या थी? 1 थी, right? Then product of two non-zero complex number is complex number. Associativity is also whole. और हम हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी निकाल सकते थे. ओके, सो इफ z is equal to a plus ib, then z inverse is what? It is a minus ib upon a square plus b square. Or if z is a complex number, non-zero complex number, then z inverse is z bar upon mod z square. ये हमारे पास फॉर्मूला भी थी. So we know this is what it is, abelian group. Okay, now suppose let me consider alpha is equal to 1 by root 2 plus I times 1 by root 2. तो ये मेरा क्या है? It is a non-zero complex number. So now let me ask, what is the order of this alpha? Alpha का order क्या है? So what is the order of the element? It is the least positive integer n such that alpha raised to n is identity, and in our case identity is 1. So smallest positive integer n so that alpha raised to n is 1. मतलब कि ऐसा कौन सा n है वो जो मुझे 1 देगा, जिसका n पावर से. तो मतलब एक तो हमारा ट्रेडिशनल वे क्या रहना चाहिए कि ये अल्फा, दिस अल्फा इज नॉट 1. Now you look at alpha square, alpha cube, alpha raised to 4, and so on. You go in this way, and whenever you find some power n is 1, then that n is what? It is identity. That is n is what? Order. But the another way is this one. See, you look at here. See, alpha is what? 1 by root 2 plus I times 1 by root 2. But this is what? I can write it is cos pi by 4 plus I sin pi by 4, and that is what? E to the power I pi by 4. So ultimately my alpha is what? E to the power I pi by 4, right? And you consider alpha to the power 8, alpha to the power 8, then it is what? E to the power I pi by 4
to the power 8, that is e to the power 4 cancel, so it is 2 pi I, and cos 2 pi e to the power 2 pi I is cos 2 pi plus I sin 2 pi, and it is what, 1. Cos 2 pi is 1, sin 2 pi is 0, so it is 1. And you can see here that if you consider any alpha raised to k where k is strictly less than 8 or 1 less than or equal to k less than 8, that is less than or equal to 7, then it will not be 1. See, ये 1 कब बना, e to the power 2 pi आया, so ये 2 pi I, so how I get 2 pi I, when 4 and 8 cancel and I get 2 from 8. तो मतलब यदि मैं पावर 8 से कम ले रहा हूं तो ये 4 उसके साथ कैंसिल होके वो मुझे 2 पाई आई नहीं देगा, राइट. यस, इफ आई कंसिडर अल्फा रेस टू 4, then 4 cancel and I get e raised to I pi, but e raised to I pi is -1, cos pi plus I sin pi 0, cos pi -1, so I get here -1, not +1. So to get here 1, the minimum power of alpha is what, 8. So least power of alpha is 8, which gives me 1. So order of alpha is what, 8. तो ये मुझे क्या मिला, 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया यहाँ से. तो इस तरह से मैं सी स्टार में से ये एक देखिए हमने एक ट्रिक यूज़ की कि मैंने ये जो नंबर दिया है, एलिमेंट दिया है सी स्टार का, उसका मैंने पोलर फॉर्म कंसिडर किया, देन इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑर्डर. और एक दूसरी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि ये जो देखिए ये अल्फा का मोड फाइंड करेंगे. सो मोड ऑफ अल्फा इज व्हाट, मोड ऑफ e raised to what is our alpha, e raised to I pi by 4, and that is what, it is 1. Or you see this is a knot, you write down just knot, e raised to I theta is what, cos theta plus I sin theta, or mod of e raised to I theta is what, mod of cos theta plus sin theta, and that is what, under root cos square theta plus sin square theta, and that is what, 1. So mod of e raised to I theta is always what, so e raised to I times whatever here it is given, then its mod is always 1. So you keep in mind that mod of e raised to I theta is always 1. So here theta is pi by 4, so it is 1, right. So तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कि ये जो अल्फा है उसका ऑर्डर मुझे 8 मिला और उसका मोड 1 है. तो माई क्वेश्चन इज दिस, आई वॉन्ट टू जनरलाइज दिस थिंग कि ये जो अल्फा का ऑर्डर फाइनाइट था तो उसका मोड 1 आया. तो मैं कोई भी एलिमेंट लूँ कि जिसका ऑर्डर फाइनाइट है तो क्या उसका मोड 1 होगा. सो लेट अस ट्राई टू सी दिस, एंड दैट थिंग इज ट्रू इन सी स्टार. सो देखिए ये सी स्टार तो हमें पता है, वो अबेलियन ग्रुप है, वो हमें पता है, राइट. Now what we are doing, we are listing some results and properties of C star. So let me give the title. Results and properties of C star with multiplication. तो ये फिर से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ or with the yes we analyzing the group C star with multiplication with the help of order of the elements. मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसके ऑर्डर का बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से उसको हम एनालाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट. ओके, तो देखिए मैं एक डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ. यू लेट z बिलोंग्स टू C स्टार. मैंने एक एलिमेंट लिया नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बी सच दैट ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट. उसका ऑर्डर फाइनाइट है. एंड लेट ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, इट इज n. उसका ऑर्डर n है, वो मैंने मान लिया. सपोज उस ऑर्डर ऑफ z इज n. ओके, सो नाउ लेट z इज इक्वल टू r e रेज टू I थीटा.
इट इज़ व्हाट, इट्स पोलर फॉर्म। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मुझे दिया हुआ और वो नॉन जीरो है, देन आई कैन ऑलवेज राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म एंड इट इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, where here r will be what, r will be strictly greater than 0 always. Okay, now see, order of z is equal to what, it is n. So n is the least positive integer such that z raised to n is identity, but in our case identity is what, it is 1, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि z, what is z, my z is r e raised to I theta to the power n is 1. It means what, it is r raised to n e raised to I n theta is 1. So now these two complex numbers are equal, so its mod is also equal. Mod of 1 is 1, mod of 1, and that is also 1. So now this is what, r raised to n mod of e raised to I n theta, that is 1. But now r is positive, so r raised to n is some positive integer, so r raised to n is positive, so mod of r raised to n is just r raised to n. और ये जो e raised to, अभी हमने जो देखा था e raised to I theta, इसका मोड हमेशा 1 रहता है कोई भी थीटा के लिए। here my theta is n theta, so this is also 1 and this is 1, so what I have, r raised to n is 1. So r is 1. Now my r is what, it is some positive number, so r is 1. तो ये जो r की मुझे वैल्यू 1 मिली वो मैं रख देता हूँ इधर, so this is 1, equation number 1. So from 1 what I have, z is equal to r e raised to I theta, so z is equal to e raised to I theta because my r is 1. मुझे क्या मिला, r की वैल्यू 1 मिली। तो अब मेरा क्या हुआ, mod z is equal to mod e raised to I theta, so it gives me mod z is equal to 1. तो क्या प्रूव किया मैंने, I have started with one complex number z belongs to C star whose order is finite, order of z is finite, then its mod is 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स फील्ड है, राइट, C, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और ये mod z इक्वल टू 1 मतलब यूनिट सर्कल 1 I -1 -I ओरिजिन। तो यदि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जीरो के सिवा, राइट, देन एंड इफ इट्स ऑर्डर इज फाइनाइट देन इट्स मोड इज 1 मीन्स इट विल लाइज ऑन द यूनिट सर्कल ओनली। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मोड है 1 मतलब क्या कि इट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, राइट। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट ले लो C स्टार विथ मल्टीप्लिकेशन, इस ग्रुप में से यदि आपको पता चल गया कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है देन इट मस्ट बी ऑन द यूनिट सर्कल, राइट। सो लेट अस राइट दिस ऑल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट if z belongs to C star and order of z is finite, then let me write in this way, if z belongs to C star, order of z is finite implies mod z is equal to 1. मतलब कि हमारे हर एक फाइनाइट ऑर्डर का जो एलिमेंट है C स्टार में, इट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, बट नॉट कॉन्वर्सली, राइट, बट नॉट कॉन्वर्सली। मतलब यदि मेरे पास कोई एलिमेंट मैंने उठा लिया यहाँ से यूनिट सर्कल पर से, तो कैन आई से दैट इट्स ऑर्डर इज फाइनाइट, ऐसा बोल सकता हूँ, बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट। लेट अस सी बाय वन एग्जांपल। सी यू कंसीडर let z is equal to e to the power I root 2, right. So it is what, cos root 2 plus I sin root 2, and you can see here mod of z is what,
mod of z is 1. So z lies on the unit circle, it will be somewhere on the unit circle. So what will be the order of z? So suppose order of z is finite. Say order of z is equal to okay, so order of z is finite, तो हमें क्या मिलेगा? So implies there exists some n belongs to n such that, देखिए मैं ज़ीरो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो है यदि, so z raised to 0 is 1, so z is identity, but z is not identity, it is e to the power I root 2. So there exists n belongs to n such that z raised to n is what? Identity 1. मुझे इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है ऐसा प्रूव करना है, तो मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी एज्यूम किया कि सपोज उसका ऑर्डर फाइनाइट है. फाइनाइट होगा तो क्या होगा? कोई मुझे n मिलेगा सो दैट z रेस टू n इज़ 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? e रेस टू I रूट 2 टू दी पावर n इज़ 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इज़ वॉट? e टू दी पावर 2m पाई i, राइट. 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट इज e टू द पावर 2 पाई i ऑल्सो, बट यू कंसिडर एनी मल्टीपल ऑफ even मल्टीपल ऑफ पाई. even लेट मी राइट इन दिस वे, 2 पाई m i, कोई भी 2 पाई का मल्टीपल रहेगा तो e टू द पावर 2 पाई i इज वॉट? 2 पाई m i इज 1. सो हियर वॉट आई हैव, इट इज e टू द पावर i रूट 2n इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 पाई m i. तो इसका मतलब हुआ I रूट 2n इज इक्वल टू 2 पाई m i. नाउ I कैंसल, सो इट इज वॉट? रूट टू कैंसल, सो इट इज n बाई m इज इक्वल टू I कैंसल, रूट टू कैंसल, सो इट इज रूट 2 पाई. सो दिस इज वॉट? n and m, n belongs to m and here m is also for some m belongs to n. तो m भी n में है, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट? इट इज अ रेशनल नंबर. दिस इज व्हाट? रेशनल नंबर. एंड दिस इज व्हाट? रूट 2 इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल, सो दिस इज व्हाट? इरेशनल नंबर. irrational number. So rational equal to irrational, that is what? That is something contradiction. So this is not true, right? So here we get some contradiction. So why we get this? Because we assume that order of z is finite. तो मतलब ये जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है. तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट मिला जो यूनिट सर्कल पे है लेकिन उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है. तो मतलब इफ z बिलोंग्स टू C स्टार एंड ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट, देन mod z इज इक्वल टू 1. But mod z equal to 1, it does not mean that order of z is finite. That is implies this, but not conversely, right? Okay, now second property. अब हमारे पास है वो p implies q, then not q implies not p. तो यदि ऑर्डर z का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसका mod 1 मिलेगा. तो सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि if z belongs to C star and mod z is not equal to 1, implies this is not true. That is, order of z is not finite. मुझे उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं मिलेगा, राइट? तो मतलब क्या हुआ कि यदि आप कोई एलिमेंट लिया आपने C स्टार में से, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उसका मोड 1 नहीं है, मतलब वो यूनिट सर्कल पर नहीं है, मतलब यहाँ से लिया है या इधर है, इधर. सो इनसाइड और आउटसाइड द यूनिट सर्कल, देन ऑर्डर ऑफ z इज नॉट फाइनाइट. दैट इज, इट इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर. दैट इज, ऑर्डर ऑफ z इज इनफाइनाइट. तो आपको उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? इनफाइनाइट ऑर्डर मिलेगा. ओके, तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन मिला हमें.
Okay, so here we can say there are some elements whose mod is not 1, or you can say there are elements whose mod is 1 but its order is not finite. So third things हम लिख सकते हैं कि there are Z belongs to C star such that mod of Z is equal to 1, but order of Z is not finite. राइट, ये हम लिख सकते हैं रिमार्क. तो मतलब ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे? सी, हमने वो ये प्रूव करने के लिए, मतलब कॉन्वर्स ऑफ 1 इज नॉट ट्रू, दैट इज द सेम थिंग हियर. तो हमने क्या किया था, z इज इक्वल टू हमने लिया था e टू द पावर i√2. मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया, i थीटा, थीटा इज सम इरेशनल नंबर, एंड मैंने बता दिया कि ये जो है वो यूनिट सर्कल पे है लेकिन उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है. राइट, तो आप ऐसे कितने इरेशनल नंबर चूज कर सकते हैं? सो इरेशनल नंबर q कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल सेट. राइट, so you have uncountably many element, you choose different irrational numbers and you create this type of complex number, then it will lies on the unit circle but whose order is not finite. And there are also so many elements on the unit circle whose order is finite. Right, तो मतलब एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो वो यूनिट सर्कल पर ही है, लेकिन यूनिट सर्कल पर है उसका मतलब ये नहीं कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है. So that is one thing. Now fourth property. So let us first discuss here, then we frame that discussion in terms of property. So let Z belongs to C star such that order of Z, or let Z belongs to C star such that Z is equal to what, e to the power 2 pi I by n, where n belongs to n. So it means what, Z raised to n is what, e to the power 2 pi I by n to the power n, that is e to the power 2 pi I is equal to 1. मतलब Z का मुझे n पावर 1 मिल गया, and you can verify that n से यदि छोटा पावर लेंगे then that power will not cancel with n and you will not get e raised to 2 pi I, and so that you will not get 1. So therefore order of Z is equal to 1. ये मुझे order of Z is equal to n. तो यदि मेरे पास Z कोई ऐसा एलिमेंट है, राइट, e to the power 2 pi I by n, then उसका ऑर्डर मुझे मिलेगा n. So let us write that thing in property number 4, that if Z belongs to C star, if Z belongs to C star and Z is equal to e to the power 2 pi I by n, then order of Z is n. Oh, okay, before writing the property let us डिस्कस दैट थिंग कि यदि Z मेरा ऐसा है तो उसका ऑर्डर n मिला. यदि मेरे पास कोई Z n ऑर्डर का है तो वो कैसा रहेगा? सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस दैट थिंग. ओके, सो यू कंसिडर, तो यहाँ से मुझे ये जो चीज़ मिली उसको हम लिख ही लेते हैं. इफ Z बिलोंग्स टू C स्टार एंड n बिलोंग्स टू सम n and you take Z belongs to n such that Z is equal to e to the power 2 pi I by n implies order of Z will be n. So that is one thing. Now see, you consider say beta is equal to e to the power 2 pi
I by 100, right? You consider beta equal to e to the power 2 pi I by 100. तो ये मेरा क्या है, z, दिस बीटा बिलोंग्स टू C स्टार. ये C स्टार का एक एलिमेंट मुझे मिला. अब ये बीटा का ऑर्डर क्या रहेगा, implies order of beta will be what, 100 by this result. Okay, so let me consider this set S. S is equal to, it is what, it is a set generated by beta, and that is what it will contains. It is beta, beta square, beta cube and so on, beta raised to 100, and beta raised to 100 will be identity and it is 1. तो ये मैंने एक सेट कंसिडर किया. ओके, नाउ you consider, let some r belongs to n, r belongs to n, and you consider beta to the power r. और देखिए बीटा का ऑर्डर 100 है, then if I consider the powers of beta, then I can produce only this 100 elements including identity, right? Not more than that. If I consider say beta raised to 1, these are 100 elements, beta raised to 101, then what I get, it is beta raised to 100 into beta, but beta 100 raised to 100 is what, 1, so it is beta, so it is beta. Now beta raised to 102 is what, it is beta raised to 100 into beta square, 1 into beta square is beta square, so beta square is here. So if you consider say beta raised to minus 304, right, so it is what, it is beta raised to 300, negative 300 into beta raised to minus 4, but this is what, beta raised to 100 raised to minus 3 into beta raised to minus 4. So beta raised to 100 is 1, 1 raised to minus 3 is 1, so I left with only beta raised to minus 4. But we know that, say beta raised to 100 is equal to 1, so beta raised to 96 into beta raised to 4 is equal to what, 1. 96 plus 4 is 100. So it means what, product of these two elements is 1, so beta raised to 4 inverse is what, beta raised to 96, but beta raised to 4 inverse means what, beta raised to minus 4 is beta raised to 96. So this beta raised to minus 4 is what, beta raised to 96. So again beta raised to 96 is one of them. So if I consider set set generated by beta and it is S, then it contains only 100 elements, and every power of beta will be here, either whether it is a positive, negative or 0. Beta raised to 0 is what, it is 1, so it is same as beta raised to 100. So now I am interested to find out the order of beta raised to r. So we know that order of beta raised to r is what, it is order of beta divided by GCD of order of beta with r, but we know that order of beta is 100, so GCD of 100 with r. Okay, so see from here, if GCD of 100 and r is equal to 1, यदि ये मुझे 1 मिल गया तो implies order of beta raised to r will be what, 100, right? Beta raised to, order of beta raised to r will be 100. और यदि beta raised to order of beta raised to r is 100, तो इसका GCD भी मुझे क्या मिलेगा, 1. वो भी हम देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बीटा रेस्ट टू r इससे 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ बीटा रेस्ट टू r इज व्हाट, 100 बाय GCD of 100 with r, and that is what, 100. So GCD of 100 r, 100 cancel, so it is 1. So I have this thing. So GCD of r with 100 is 1 if and only if order of beta raised to r is 100. तो देखिए, तो इस सेट में मुझे ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे जिसका ऑर्डर 100 है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S हैविंग ऑर्डर 100 इज इक्वल टू कितने मिलेंगे, कि जितने R
जिसका GCD 100 के साथ 1 है, सो इट इज़ व्हाट 5 ऑफ 100. 5 of 100 represents the number of positive integer whose GCD with 100 is 1. So, and 5 of 100 is what 40. So number of elements in S having order 100 are how many? 40. 40 एलिमेंट मुझे मिलेंगे इस सेट में जिसका ऑर्डर मेरा कितना है? 100 ऑर्डर है. ओके, तो मतलब क्या हुआ कि मैंने एक एलिमेंट उठाया C स्टार में से, तो मुझे और उसका एलिमेंट 100 था, तो मुझे और 40 एलिमेंट मिल गए इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट कि जिसका ऑर्डर 100 है. और देखिए, तो ये जो इसमें से मुझे कोई 40 एलिमेंट मिलेंगे जिसका ऑर्डर मेरा 100 है, तो वो फाइनाइट हुआ. फाइनाइट हुआ तो बाई प्रॉपर्टी 1 वो कहाँ पर होगा? वो यूनिट सर्कल पर रहेगा, राइट. ओके, और मेरा क्लेम है कि यदि मैं कोई और एलिमेंट उठाता हूँ, और एलिमेंट विच इज़ आउटसाइड फ्रॉम दिस सेट, इस सेट से बाहर का कोई मैंने एलिमेंट लिया, तो उसका ऑर्डर कभी 100 नहीं होगा. और यदि वो 100 है तो वो यहीं पर है, उसका ऑर्डर 100 है, देन इट मस्ट बी हियर. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस थिंग. सो नाउ दिस इज माई क्लेम. तो ये क्या हुआ, इस डिस्कशन को मैं शॉर्ट में लिखूं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S having order 100 is equal to 40. Now this is my claim. If alpha belongs to C star, such that order of alpha is 100 implies alpha must be in S. तो ये S में ही होगा. तो यदि मैंने ये क्लेम प्रूव कर दिया था तो क्या मतलब उसका है कि मेरे पास जो 100 ऑर्डर के एलिमेंट्स है वो इसी में है, इसके बाहर नहीं है. यदि मैं कोई भी लेता हूँ C स्टार जिसका ऑर्डर 100 है, देन इट मस्ट लाइज इन S, यहीं पर है. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट. सो योर ऑर्डर ऑफ अल्फा इज व्हाट 100. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा रेज टू 100 विल बी 1. But 1 means what? It is e to the power 2 pi I, or some you can say 2 pi mi. It is e to the power 2 pi mi. That's fine. Okay. और ये जो मेरा अल्फा है, that is what? So it is alpha is equal to e to the power 2 pi I 2 pi mi to the power 1 by 100. So this is what? It is e to the power 2 pi mi by 100. तो इसका मतलब क्या हुआ? I can write it is e to the power 2 pi I by 100 to the power m. तो पावर m. तो ये तो क्या है मेरा e टू द पावर 2 pi I by 100. इट इज़ व्हाट? 2 pi I by 100 इट इज़ बीटा. तो ये क्या हुआ मुझे, ये क्या मिला मुझे? इट इज़ बीटा टू द पावर m. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्फा इज़ व्हाट? बीटा टू द पावर m. बट बीटा टू द पावर m इज़ व्हाट? इट इज़ एलिमेंट ऑफ S, बिकॉज S कंटेन्स ऑल द पावर्स ऑफ बीटा. सो अल्फा बिलोंग्स टू S. तो क्या हुआ कि इफ आई कंसिडर एनी एलिमेंट ऑफ 100 in C star then it must lies in S. और दूसरी चीज हमने क्या प्रूव की थी कि ये S में 100 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है? 40. 40 इज व्हाट? 5 of 100. तो इसका मतलब क्या हुआ कि C स्टार में 100 ऑर्डर के 40 एलिमेंट्स है, वो यहीं पे है और कहीं और नहीं है. मतलब इन होल C स्टार इज अनकाउंटेबल सेट, इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स. तो इसमें से 100 ऑर्डर के सिर्फ 40 एलिमेंट्स है. हाँ, बहुत सारे एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर और कुछ हो सकता है, लेकिन 100 ऑर्डर के सिर्फ 40 एलिमेंट्स है. सो व्हाई इट इज 100?
सी यू कंसिडर इन सी स्टार सम एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 50, तो 50 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे? बाय द सेम आर्ग्यूमेंट यू कैन प्रूव दैट पूरे सी स्टार में 50 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे? 5 ऑफ 50, 5 ऑफ 50, एंड 5 ऑफ 50 इज व्हाट? इट इज 5 ऑफ 2 into 25, that is 5 of 2 into 5 square. 5 of 2 is 1 and 5 square is 5 into 4, so it is 20. So आपको मिलेंगे 50 ऑर्डर के आपको 20 एलिमेंट्स ही मिलेंगे पूरे सी स्टार में। आपको 50 ऑर्डर्स के आपको 20 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ओके, सो वी कैन conclude or we can write all this discussion here in terms of property that let me remove this one also. So now property number our 5, property number 5, that for every n belongs to n, for every n belongs to n, C star has exactly 5n elements of order n। मतलब C स्टार में मुझे यदि बोले कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, सो 5 ऑफ 2 दैट इज 1। 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 5 ऑफ 10 दैट इज 4। 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 5 ऑफ 8, सो 5 ऑफ 8 इज ऑल्सो 4। तो 4 एलिमेंट ही मिलेंगे। तो देखिए हमने वो पहला रिजल्ट प्रूव किया था कि यदि मेरे पास सी स्टार में कोई एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो वो कहाँ पर लाई करेगा? यूनिट सर्कल पे। तो मतलब हर एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है दैट इज ऑन यूनिट सर्कल, वो यूनिट सर्कल पर ही है फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट। और कितने हैं? 5 ऑफ n। और कोई भी एलिमेंट उठा लो यूनिट सर्कल पे से तो वो फाइनाइट ऑर्डर का है ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमने देखा। Okay, so this is what property number 5. So next, every element of C star is not of finite order. Every element of C star is not of finite order। सी स्टार में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है ऐसा जरूरी नहीं है, बट सी स्टार हैज एलिमेंट ऑफ एवरी फाइनाइट ऑर्डर। पर सी स्टार के पास हर एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है वो जरूरी नहीं है। अब जो भी ऑर्डर का एलिमेंट बोलेंगे सी स्टार में है, और कितने हैं? 5 ऑफ n जितने। समझ मेरे पास मैंने बोला कि मुझे 70 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए सी स्टार में, मिलेगा? यस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 ऑफ 70। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7। सो in C star there are, we write directly, we are in C star, so there are infinitely many। देखिए इनफाइनाइट में भी दो टाइप के इनफाइनाइट है, काउंटेबली मेनी और अनकाउंटेबली मेनी। सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी बट दिस इनफाइनाइट इज अनकाउंटेबल। uncountably many elements of infinite order। इनफाइनाइट ऑर्डर के वो हमने बताया था ना कि कैसे मिलेगा आपको, कि इसे यू कंसिडर एनी एलिमेंट आउटसाइड द यूनिट सर्कल देन इट्स ऑर्डर इज इनफाइनाइट। तो ये अनकाउंटेबली तो ऐसे ही हो गया। और यदि यूनिट सर्कल पर से भी लेंगे आप तो भी आपको क्या मिलेंगे? वो
उसमें से वो जो e raised to I theta, theta is irrational, then its order is infinite. So in that way also it is uncountably many. So there are infinitely many elements of infinite order. There are infinitely many but uncountably many elements of infinite order. But what about finite order? So there are infinitely many elements of फाइनाइट ऑर्डर. देखिए ये डिफरेंस समझते हैं इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कि मेरे पास फाइनाइट ऑर्डर के भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है. कैसे? क्योंकि 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी है, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर. यू गिव मी एनी फाइनाइट नंबर, आई हैव एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. ओके. और ये जो इनफाइनाइटली है वो कैसा है? वो काउंटेबल है. क्यों? क्योंकि ये 1 ऑर्डर का मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर का 5 ऑफ 2, दिस इज 5 ऑफ 1, दैट इज 1. ये भी 1 एक ही एलिमेंट मिलेगा. 3 ऑर्डर का 5 ऑफ 3, 2 एलिमेंट मिलेंगे. 4 ऑर्डर के 5 ऑफ 4, 2 एलिमेंट, लाइक दैट, राइट. तो मतलब मैं क्या करूंगा, 1 ऑर्डर के जितने एलिमेंट है उसका एक सेट, 2 ऑर्डर के मतलब n ऑर्डर के जितने एलिमेंट है वो कितने मिलेंगे? 5n, और उसका एक सेट बनाओ. तो आई हैव काउंटेबल सेट्स ऑफ काउंटेबल एलिमेंट. तो 5n जो भी है, 5n इससे सपोज के, देन आई कंसिडर अ सेट से Z1 Z2 अप टू Z के. तो इन सब का ऑर्डर क्या है? n. तो मेरे पास ऐसे काउंटेबल सेट है. हर एक सेट में कितने एलिमेंट है? फाइनाइटली मेनी. सो इट इज काउंटेबल. सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. So number of infinite, there are infinitely many elements of finite order, but this infinite is what? It is countably many. So this is what about C star with multiplication. तो ये हमने ग्रुप देखा था, लेकिन ये जो सी स्टार का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने एक कॉन्सेप्ट उस पर इम्पोज किया, दैट इज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, और फिर से हमने उसको एनालाइज किया. तो इस तरह से हम हर एक ग्रुप को 1 by 1 उसको एनालाइज करते जाएंगे जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी. सो इफ आई once again summarize all things about C star with respect to order of the element, then it is what? C star with multiplication एक ऐसा ग्रुप है उसमें हर एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है. और कितने हैं? सपोज n, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज n, देन इट हैज़ एग्जैक्टली n एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n. और वो कहाँ पर है? यूनिट सर्कल पे ही है वो, और कहीं नहीं मिलेंगे. और कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, देन इट मस्ट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, बट नॉट कॉन्वर्सली. यूनिट सर्कल पे से कोई भी एलिमेंट उठा लिया तो आप कह नहीं सकते कि उसका ऑर्डर फाइनाइट ही रहेगा. यस, इफ यू कंसिडर एनी एलिमेंट आउटसाइड द यूनिट सर्कल, देन इट्स ऑर्डर मस्ट बी इनफाइनाइट. सो देर आर अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, एंड देर आर काउंटेबली मेनी एलिमेंट्स, infinitely many, but it is countably elements of finite order. Okay, so this is what about C star. अब हम और एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं. जो हमने वो हमारी ग्रुप की लिस्ट थी उसमें वो ग्रुप नहीं था, लेकिन दैट इज अ वेरी सिंपल ग्रुप, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, you consider, okay, let me give the name of that group. That group is known as Kleins 4 group. Kleins 4 group. तो ये Kleins 4 group क्या है? So you consider let K4. K4 is a set. उसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ आइडेंटिटी, सॉरी E, A, B or C. So let K4 this be a set with following property. So property number 1,
with the following properties. So first property is what? E is the identity element. E is the identity. Second thing, order of A is 2, order of B is also 2. मतलब ये A और B दो एलिमेंट है K4 के, उसके ऑर्डर 2 है, मतलब दैट इज व्हाट, ऑर्डर 2 है, वरना मतलब क्या है कि वो आइडेंटिटी नहीं है. डेफिनेटली A एंड B आर इन द सेट, सो डेफिनेटली A एंड B आर नॉट आइडेंटिटी. एंड order of A is 2 means A square is E and B square is E, or you can say A inverse is A or B inverse is B. So this is the another way to say that order of A and order of B are 2. और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है यदि आप A और B, okay, what is C? So C is what? C is what? It is a product of A and B from this side or this side. मतलब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट करेंगे किसी ऑर्डर में से और जो मिल रहा है उसको मैं बोल रहा हूं सी. सो आई हैव अ सेट विथ दिस प्रॉपर्टी, देन आई क्लेम दैट माई सेट K4 इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप. तो ग्रुप के लिए मुझे वो ऑपरेशन चाहिए, तो यहां पर मैंने ऑपरेशन तो कहीं कुछ दिया नहीं है, लेकिन वो बीच बीच में मैंने ऑपरेशन का डिस्कशन कर दिया. देखिए ए बी तो मतलब इसके बीच कुछ ऑपरेशन है, बी ए उसके बीच भी कुछ ऑपरेशन है. सो दैट इज व्हाट? दैट इज ये ए डॉट बी, ये जो डॉट है वो ऑपरेशन है K4 का. तो ए डॉट बी क्या है वो मुझे पता है कि वो सी है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द कंपोजिशन टेबल. सो दिस इज व्हाट? ई ए बी और ये सी. सी को मैं क्या लिख देता हूँ अब? दिस नाउ दिस सी इज व्हाट? नाउ इट इज माई ए बी. सो इट इज व्हाट? ए बी. So E, A, B or A, B, and this A, B is what? It is C by the property number 3. So E into E is E because E is identity. So if you multiply or operate E with any element, then you will get the same element. So with E it is A, B and A, B. With in column it is A, B and A, B. Now A into A square is identity because its order is 2. Now AB, now A into AB, so it is what? A square into B. So A square is identity, B it is B, so this will be B. Similarly BA, but BA is what? It is AB, so this is my AB. Now B into B, B square is identity. Now B into AB, that is what? BA into B, but BA is what? AB into B because AB is equal to BA. So this is what? A into B square, it is what? A into E, that is A. So this is my A. Similarly here AB into A you can do in this way, and you can prove AB into A, it is A square B, it is B. AB into B is A, and AB into AB, AB into AB, but this is BA, but it is what? AB. BA is equal to AB. So A square B square is equal to identity, that is identity. और सी यहाँ पर मैंने A और B का ऑर्डर 2 बताया, लेकिन ये AB का ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली 2 मिल गया मुझे. देखिए AB square is what? AB and by this calculation it is identity. So order of AB is 2. तो देखिए ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसी सेट में से आ रहे हैं. सो इट इज व्हाट? ग्रुप. और ए का इन्वर्स वो ए है, बी का इन्वर्स बी है, और ए बी का ऑर्डर भी 2 ही मिल गया. अब ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2. इट मीन्स व्हाट? दिस ए बी इन्वर्स इज व्हाट? ऑल्सो ए बी. तो ए बी का इन्वर्स वो खुद है, दैट इज इन्वर्स ऑफ सी इज इट सेल्फ. सो इन शॉर्ट, इफ आई कंसिडर अ सेट लाइक E A B AB or EAB C, where C is AB, and with this 3 property, then K4 is an abelian group. Is an abelian group of order 4, and it is known as Klein's 4 group.
एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल K4। तो ये बहुत सिंपल सा ग्रुप है। तो इसमें क्या है और प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि यू कंसीडर K4, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1, वो तो कोई भी वो ग्रुप में रहता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ AB आर 2, मतलब एक ऑर्डर का एलिमेंट है और बाकी के 3 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। और दूसरा बोल सकते हैं कि ये हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। A इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही रहता है कोई भी ग्रुप में, फाइनाइट, इनफाइनाइट, अबेलियन, नॉन अबेलियन, बट A इन्वर्स इज A, B इन्वर्स इज B एंड AB इन्वर्स इज ऑल्सो इटसेल्फ AB। तो देखिए ये जो क्लेंस 4 ग्रुप है तो उसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक सेट लिया जिसमें 4 एलिमेंट है, एक को मैंने आइडेंटिटी बोल दिया, बाकी के 2 एलिमेंट है वो खुद के इन्वर्स है या उसका ऑर्डर 2 है ऐसा बोल दिया, और तीसरा एलिमेंट मैंने कैसे बनाया, वो 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट बना दिया और बोल दिया कि वो ये जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट हो रहा है। तो ऐसा करने से मुझे ये एक 4 एलिमेंट से ग्रुप मिल गया। तो यहाँ पर AB ये क्या थे, AB ये अल्फ़ाबेट्स थे? नो, इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट्स, इट इज़ जस्ट सिंबल। आप कोई भी ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए मैथमेटिक्स में से, 4 सिंबल, 4 थिंग्स जो ऐसी हरकत करे और उसको आप रख दीजिए, देन दैट सेट विल फॉर्म्स द ग्रुप, और उसको हम बोलेंगे क्लेंस 4 ग्रुप, उसको बोलते हैं क्लेंस 4 ग्रुप। तो क्लेंस 4 ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं, वो दैट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ग्रुप। ऐसा कोई भी ग्रुप जो ऐसी हरकत कर दे तो उसको बोलेंगे हम क्लेंस 4 ग्रुप। सी फॉर एग्जाम्पल, so you consider U8, you consider U8. So what is U8? It is 1 relatively prime with 8. So 1, 3, 5 and 7, और इस पर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8. So 1 is identity, so your identity is 1. Your 3 into 3 is what, that is 9, but 9 multiplication modulo 8 is what, 1. 5 into 5 is 25, 25 modulo 8, 8 3s are 24, so it is 1. And this 3 into 5, that is 15, but 15 is what, 1. Sorry, here I am not getting 3 into 5, right? So it is 15. So 15 is not 1, na? 15 is not 1. So this U8 is a abelian group with 4 elements, but it is not Kleins 4 group, right? Because ये जो मुझे C है वो कैसा मिलना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट. So 3 into 5 should be 7. Is it 7? Yes. It is 7 ना. Yes, 3 into 5 is 15. Yes, मैं उसको आइडेंटिटी बना रहा था, नहीं आइडेंटिटी मुझे तो क्या चाहिए, ये 7 है वो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए. सो 3 into 5 is 15, but 15 modulo 8, so 15 by 8, 8 1 जा 8 and I get it is 7, right? So remainder is 7. So इन दोनों का प्रोडक्ट है, मुझे 7 मिला, और ऑफ कोर्स दे आर कॉम्पिटिटिव, सो 5 into 3 is also 7. तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से मिला मुझे ऑर्डर ऑफ 3 is 2, यहाँ से मिला मुझे ऑर्डर ऑफ 5 is 2, और ये जो मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के ऑर्डर 2 है, इन दोनों के ऑर्डर 2 है, और ये तीसरा वाला है वो दोनों का प्रोडक्ट है इन 2 एलिमेंट का. सो दिस U8 satisfy all these conditions. So my U8 is what? U8 is K4 group. मतलब U8 is K4 group. अब U8 को मैं Kleins 4 ग्रुप बोल सकता हूँ, लेकिन U8 क्या है? U8 तो कोई ग्रुप है, वो हमने उसको अलग से स्टडी किया था. ओके, नाउ यू कंसिडर दिस U12. तो U12 में क्या है हमारे पास? 1, then 2, 3, 4, 5, then 7 and 11.
So and operation is what? It is multiplication modulo 12. राइट तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी इज 1, 5 into 5 is 25, but 25 modulo 12 is 1, 12 2s are 24. Now 7 into 7, 49. So 49 modulo 12, 12 4s are 48. So 48 and here 49, so the remainder is 1. Now 5 into 7 is 35. But 35 modulo 12, 35 modulo 12 will be 11. You can see here 35 divided by 12. So 12 2s are 24 and 1 1. So remainder is 11. So order of 5 is 2, order of 7 is 2 and इन दोनों का multiplication 11 है और all are commutative. Or you can say order of 11 is also, here you can say 11 into 11 is 121 and 121 modulo 20, 12 10s are 120 and here 121, so its order is also 2. तो एक आइडेंटिटी, बाकी के 3 दो ऑर्डर के एलिमेंट, ये दोनों के प्रोडक्ट से तीसरा बढ़ रहा है, तो ये U12 is also K4 group. So this is my also K4 group. So let us say about what about U10? तो U10 कैसा रहेगा, whether it will be K4 or not. So let us see. So U10 में क्या है, 1 2 is not there, 3 4 is not there, 5 is not there, 6 is not there, so directly 7 and 9. So identity is 1. ये 3 into 3 is what? It is 9. But here operation is modulo 10. So 3 into 3 is 9. 3 into 3 is 9. So it is not 1. Right? It is not 1. ओके ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने पहला या यहाँ जो लिखा उसी का ऑर्डर 2 होना चाहिए. यदि ऐसा मिल रहा है इन दोनों का ऑर्डर 2 है और इन दोनों के प्रोडक्ट से मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है, तो भी दैट इज ऑल्सो क्लेंस 4 ग्रुप. राइट, 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए और एक आइडेंटिटी 2 के प्रोडक्ट से मुझे तीसरा मिलना चाहिए और वो जिसके 2 के प्रोडक्ट से तीसरा मिल रहा है उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली तीसरे का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है. वो जो 2 एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होना चाहिए. दैट 2 एलिमेंट शुड बी कम्यूट. सो देखो मुझे यहाँ पर 1 नहीं मिला, नॉट अ प्रॉब्लम. सो लेट अस गो फॉर 7. यदि ये 7 और 9 ऐसी हरकत कर दे कि जिसका प्रोडक्ट 3 मिल जाए और इन दोनों का ऑर्डर 2 हो तो भी हो जाएगा, लेकिन लेट अस सी होता है कि नहीं. So let us 7 into 7, it is 49, but 49 is what? 9 modulo 10. So again it is not 1. मतलब 7 का ऑर्डर भी मुझे 1 नहीं मिला, तो अब तो पक्का ये नहीं हो रहा है. और सिमिलरली यहाँ पर 9 into 9 is what? 81, it is 1. तो ये 9 का ऑर्डर 2 है, ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, और इन दोनों का ऑर्डर 2 नहीं है. इन दोनों के यू कैन वेरीफाई ऑर्डर ऑफ 3 and 7 विल बी 4. उसके ऑर्डर आपको 4 मिलेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो U8 है और U10 है और U12 है, तो ये U8 K4 है, U12 K4 है, लेकिन ये K4 नहीं है. दिस इज नॉट K4. तो हर एक UN K4 है ऐसा जरूरी नहीं है. राइट, हमने और भी एक ग्रुप देखा था. देखिए आप K4 को ऐसे भी बोल सकते हैं, वो 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है. 2 स्क्वायर 2 इज प्राइम, P स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है देन इट इज अबेलियन. वो हम आगे जाके प्रूव करेंगे, लेकिन 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप अबेलियन ही रहता है. राइट, तो K4 को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, उसमें एक आइडेंटिटी है और बाकी के 3 एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स इज 2, देन दैट इज क्लेंस 4 ग्रुप. तो हमने एक ग्रुप देखा था G, F1, F2, F3 और F4. उसमें F1 क्या था, F1x इज x, F2x इज -x, F3x इज 1/x and F4x is -1/x. सो दिस इज व्हाट इट इज आइडेंटिटी. ये हमारा आइडेंटिटी था.
और दूसरी चीज़ हमारे पास थी F1 इन्वर्स इज F1 इन्वर्स, मतलब आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी रहता है ऑब्वियसली। F2 इन्वर्स इज F2 इन्वर्स F2, F3 इन्वर्स इज F3 एंड F4 इन्वर्स इज F4। तो मतलब इन तीनों का ऑर्डर क्या हो गया, इन तीनों का ऑर्डर 2 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप F2 और F3। सो F3 और F2 at x is what? F3 at F2x. F2x is what? It is negative x, right? And F3 का मतलब क्या है? 1 upon reciprocal. So it is what? 1 upon minus x. So that is what? Minus 1 upon x, and that is what? F4. So F3 F2 is what? F4, or F2 F3 will be also F4. So it is commutative group. So this is also K4. तो ये ग्रुप भी हमारा क्या है? K4। तो ये K4 एक ग्रुप है जो Claise 4 ग्रुप है, दैट इज अ ग्रुप, दैट इज फाइन, बट इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ द ग्रुप, कि जो ग्रुप 4 ऑर्डर का है और ऐसी हरकत कर दी, देन इट इज K4। हमने एक देखा जो U10 था, U10 वो 4 ऑर्डर का है, अबेलियन है, लेकिन वो इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, राइट? उसमें आइडेंटिटी के सिवा जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर 2 नहीं है, राइट? देन इट इज नॉट K4। तो आप देख सकते हैं Z4 इज ऑल्सो नॉट K4। Z4 इज व्हाट? 0 1 2 3 एंड ऑपरेशन क्या रहेगा? एडिशन मॉड्यूल ऑफ 4। तो हियर आइडेंटिटी इज 0, 1 इनवर्स इज व्हाट? 1 का इनवर्स क्या है? 3, वो खुद नहीं है, फिनिश्ड। 1 का ऑर्डर मुझे 4 मिल रहा है यहाँ पे, 1 का ऑर्डर क्या है? 4 है। तो मतलब हर एक एलिमेंट के ऑर्डर 2 नहीं है, यस। और 3 का इन्वर्स मिलेगा मुझे 1, तो 1 का इन्वर्स 1 नहीं है, 3 का इन्वर्स 3 नहीं है, और 2 का इन्वर्स मुझे 2 मिलेगा, दैट्स फाइन। 2 का इन्वर्स 2 मिलेगा। सो Z4 इज नॉट K4, Z4 इज नॉट K4। ओके, तो आगे जाके भी हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आएंगे, वो इट बिहेव्स लाइक K4। सो इट इज़ वेरी स्मॉल एंड सिंपल ग्रुप, and it will be very helpful to understand the notion of algebra, especially finite group. Okay, so ये था हमारा K4। Okay, so we stop this lecture here, and in the next lecture we'll discuss cyclic group, right? So now we have what we have up to now. We have list of examples of groups, various types of groups, और आज हमने एक वो नया ग्रुप ऐड किया K4 वो लिस्ट में, और आगे जाके भी बहुत सारे हम ग्रुप्स ऐड करने वाले हैं। स्पेशली K4 के बाद हम डिस्कस करेंगे SN और DN, ये 2 हमारे ग्रुप है। वो भी टाइम लगेगा थोड़ा, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसको हम जानते हैं GLNR, SLNR, और R के जगह आप QC भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम और डिटेल में, वी नो दिस, राइट? वी नो दिस। जैसे कि हम ये C स्टार विथ मल्टीप्लिकेशन जानते थे, लेकिन आज हमने ये C स्टार का डिटेल एनालिसिस किया विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। वैसे हम GLNR और SLNR का भी हम डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट सेंटर। हम डिटेल में भी हर एक ग्रुप का कहीं ना कहीं हम उसका डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे ग्रुप में, ऑर्डर है, फिर हमारे पास दूसरे क्लास है, सब उसके सब ग्रुप्स है, जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे उस हिसाब से हम ग्रुप का एनालाइज करते रहेंगे, और वी कीप एडिंग new groups in our list. Okay, so we stop this lecture here, and in next lecture we'll start cyclic groups. So thank you.